हेलो फ्रेंड्स, ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 12th ਜੂਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ, ਪੀਐਸਸੀਬੀ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੀਸੀਐਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਆਈਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵਟਸਐਪ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ 8th of ਜੂਨ। 8th ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਡੇ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਡੇ 8th ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ। 2000 ਸੰਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਡੋਨਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ। ਉਧਮਪੁਰ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ 18th ਬੈਂਚ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦਾ? ਕੈਟ ਦਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ 18th ਬੈਂਚ ਇਨੋਗਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਫॉर UTs ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਲਦਾਖ, ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਬੀਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਆਕਸੀਜਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਾਈਟਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਇਓਮਡ ESCIL ਪੋਡ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਬੀਪ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਬੀਪ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਸਤਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਟੂ ਕਾਊਂਟਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਸਤਰੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਅੰਪਸ ਥਰੂ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ CBIC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। CBIC ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ। ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਤੁਰੰਤ ਕਸਟਮ ਐਟ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਐਂਡ ਚੇਨਈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਔਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਸਟਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ? CBIC ਦੁਆਰਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ। ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਹੈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। CBIC ਦੇ ਹੈਡ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ CBDT ਦੇ ਹੈਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ ਔਰ CBDT ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ G20 ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਡਾਲਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਇਹ COVID-19 ਦੇ ਲਈ। COVID-19 ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਲਈ 21 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਗੇ G20 ਨੇਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ decided to set up its first coal trading platform coal exchange ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ coal trading platform coal exchange ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਦਾ।
इस तो इलावा कोल इंडिया लिमिटेड की गल करिए, इसके हैडकुआटर कोलकाता वेस्ट बंगाल दे विच है और इसके हैड ने प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया के हैड ने। कोल इंडिया लिमिटेड के हैड कौन ने? प्रमोद अग्रवाल और हैडकुआटर कोलकाता वेस्ट बंगाल दे विच है। नैक्सट है वर्ल्ड बैंक ने की कराया? अप्रूव किए 1950 करोड़ रुपए। 1950 करोड़ रुपए का लोन अप्रूव किया है वैस्ट बंगाल के लिए। वैस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वैस्ट बंगाल नूं प्रोवाइड करेगा वर्ल्ड बैंक 1950 करोड़ रुपए। किस दे लिए? कोविड-19 सिचुएशनस नूं टैकल करन दे लिए। नैक्सट है मोनिका मोहिता यह एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड के एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए हैं? मोनिका मोहिता एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं स्विट्जरलैंड के। राहुल श्रीवास्तव एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं रोमानिया के। दो कंट्रीज के एंबेसडर कल आप डिस्कस किए थे। स्विट्जरलैंड के एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं मोनिका मोहिता। रोमानिया के किए गए हैं राहुल श्रीवास्तव। इंडियन डेफ क्रिकेट टीम है जिहड़ी ये पार्टिसिपेट करेगी DICC वर्ल्ड कप 2021 दे विच। किहड़ी कंट्री इसनूं होस्ट करेगी? UAE। इंडियन डेफ क्रिकेट टीम DICC दे वर्ल्ड कप 2021 दे विच पार्टिसिपेट करेगी, जिसनूं होस्ट करेगी UAE यूनाइटेड अरब एमीरेट्स। नैक्सट है एथलैटिक्स इंटीग्रेशन यूनिट ने गोमथी मरमूथू जिन्हों ने 2019 की एशियन चैंपीयनशिप हैल्ड की गई सी दोहा कतर दे विच। उस दे विच 800 मीटर दे विच गोल्ड मैडल जित्तिया सी। 4 साल के लिए इन्हों बैन किया गया। 4 साल के लिए इन्हों बैन कर दिता गया। ये किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु तो। कितों बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु तो ये बिलोंग करते हैं। नैक्सट है रंजीत कुमार इन्हों एक अवार्ड दिता गया नासा का डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मैडल। नासा द्वारा डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस मैडल किन्हों दिता गया? रंजीत कुमार नूं। इस तो इलावा एक नाम होर याद रखना है RK चेट्टी पंडीपति। यह फर्स्ट इंडियन बने सी इस अवार्ड नूं लैण वाले फर्स्ट इंडियन बने सी RK चेट्टी पंडीपति। कदों दिता गया सी इन्हों? 2002 दे विच। 2002 दे विच इन्हों यह प्राइज़ दिता गया सी। नैक्सट है अज दी यूनीयन कैबिनेट दे विच आपां डिस्कस कर रहे हैं 5 होर मिनिस्टर्स। सब तो पहले प्रहलाद जोशी की गल करते हैं। प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल मिनिस्ट्री और माइन मिनिस्ट्री 3 मिनिस्ट्रियाँ होस्ट कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल मिनिस्ट्री और माइन मिनिस्ट्री धरवड़ कर्नाटका तो लोक सभा MP ने। महेंद्र नाथ पांडे स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री है और चंडोली उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP ने। नेक्स्ट है गिरिराज सिंह एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है और फिशरीज एंड डेयरीज मिनिस्ट्री है। एनिमल हस्बेंड्रीज मिनिस्ट्री है। बेगूसराय बिहार तो लोक सभा MP ने। गजेंद्र सिंह शेखावत एक इंपोर्टेंट मिनिस्ट्री जिहड़ी कि रिसेंटली क्रिएट की गई मोदी गवर्नमेंट द्वारा जल शक्ति मिनिस्ट्री क्रिएट की गई मोदी गवर्नमेंट द्वारा। गजेंद्र सिंह शेखावत मिनिस्टर बनाए गए। गजेंद्र सिंह शेखावत जिहड़े कि जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP ने। रामविलास पासवान कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री है। राज्यसभा MP ने बिहार तो राज्यसभा MP ने।
ठीक है जी। ये 5 मिनिस्टर्स आपां डिस्कस किए हैं। हुण आपां चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ के वल। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑन विच डे वर्ल्ड एसिडिडेशन डे इज़ ऑबजर्व। वर्ल्ड एसिक्रेडेशन डे, बेसिकली इसकी गल करते हैं क्रेडिट। ये वर्ड बने क्रेडिट तो कि अगर एक कंपनी है उसनों उस क्रेडिट दिता जाता है तो की हो जाएगी, एक फेमस कंपनी हो जाती है। ठीक है, एक कंपनी की गल कर सकते हैं, एक यूनीवर्सिटी की गल कर सकते हैं। इसका मतलब मान्यता, आप कहते हैं ना भी PSC, यह स्कूल PSCB तो मान्यता है, यह स्कूल CBSE तो मान्यता है। इस तरीके नाल इस दिन को ऑबजर्व किया जाता है 9 जून को। कदों ऑबजर्व किया जाता है इस दिन को? इस दिन को ऑबजर्व किया जाता है 9 जून को। ठीक है जी। बाकी दिन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेने। 4 जून, 4 जून को दिन ऑबजर्व किया गया। किहड़ा दिन ऑबजर्व किया गया? इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रैसन। इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रैसन कदों ऑबजर्व किया गया? 4 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑबजर्व किया गया 5 जून को। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। थीम रही सी बायोडाइवर्सिटी। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑबजर्व किया गया 7 जून को। फूड सेफ्टी एवरीवनस बिजनेस, फूड सेफ्टी एवरीवनस बिजनेस इस दिन की थीम रही सी। 8 जून को, 8 जून को किहड़ा दिन ऑबजर्व किया गया? 8 जून को किहड़ा दिन ऑबजर्व किया गया? एक कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसोगे, कमेंट बॉक्स दे विच तुसीं दसोगे, इस दे नाल नाल थीम भी दसोगे। ठीक है जी। नैक्सट आप चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के वल। विच कंट्रीज मिलिटरी तत्मदाव, तत्मदाव एक कंट्री की मिलिटरी है तत्मदाव, इसने डिसाइड किया टू यूज़ फेसबुक अगेन टू प्रोवाइड एक्यूरेट न्यूज़ टू पीपल। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि लोग उस देश के लोगों को एक्यूरेट न्यूज़ प्रोवाइड करवाने के लिए कि होंगे TV चैनल्स कई गलत न्यूज़ दिखाते हैं, तो उसनों रोकने के लिए और एक्यूरेट न्यूज़ प्रोवाइड करवाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। फेसबुक का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा मिलिटरी द्वारा, तत्मदाव मिलिटरी द्वारा। किहड़ी कंट्री की यह मिलिटरी है? एक कंट्री की मिलिटरी है म्यांमार। किहड़ी कंट्री की मिलिटरी है? म्यांमार की मिलिटरी है। ठीक है जी। म्यांमार की मिलिटरी द्वारा इसनों यूज़ किया जाएगा, म्यांमार की मिलिटरी द्वारा इसनों यूज़ किया जाएगा। इस तो इलावा आप बाकी कंट्रीज़ डिस्कस करते हैं। सब तो पहले पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल की है? वॉर्सो। पोलैंड की कैपिटल वॉर्सो और करंसी इत्थे ज़लोटी चलती है। नाइजीरिया, नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। नाइजीरिया कैपिटल अबूजा और करंसी इत्थे न्यारा चलती है। मोनाको, मोनाको कैपिटल मोनाको ही है। मोनाको कैपिटल मोनाको है और करंसी इत्थे यूरो चलती है। यूरोपियन कंट्री है, यूरो करंसी चलती है। और मोनाको दे विच वर्ल्ड एथलैटिक्स का हैडकुआटर भी है, जिसनों 1912 दे विच बनाया गया सी। ठीक है जी, याद रखना है। वर्ल्ड एथलैटिक्स के हैड कौन ने? सेबेस्टियन कोए, सेबेस्टियन कोए। म्यांमार, अच्छा म्यांमार की गल करिए। म्यांमार कैपिटल की है? म्यांमार कैपिटल नई पई था, नई पई था। म्यांमार कैपिटल नई पई था और करंसी इत्थे क्यात चलती है, करंसी क्यात चलती है। पेरू, पेरू कैपिटल लीमा। पेरू कैपिटल है लीमा और करंसी इत्थे सोल चलती है, करंसी इत्थे सोल चलती है। पेरू कैपिटल लीमा, करंसी सोल। नैक्सट है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फैडरेशन। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फैडरेशन की गल करिए, इसने की करिया? आप न्यूज़ डिस्कस करते होंगे कि इस एथलीट के उत्ते डोपिंग का यह चार्ज लग्या, इस एथलीट के उत्ते डोपिंग का यह चार्ज लग्या। पर हुण अपनी न्यूज़ है कि संजीता चानू के उत्ते डोपिंग के चार्जिस नूं रिमूव किया गया। संजीता चानू के उत्तों डोपिंग के चार्जिस नूं रिमूव किया गया। ठीक है। ये किहड़ी कंट्री, किहड़ी स्टेट तो बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं मणिपुर तो। कित्थों बिलोंग करते हैं? मणिपुर तो बिलोंग करते हैं। वेट लिफ्टिंग तो बिलोंग करते हैं संजीता चानू, संजीता चानू। अच्छा, इस तो इलावा आप बाकी स्टेट्स भी डिस्कस कर लें। अच्छा, पहले डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फैडरेशन का हैडकुआटर कित्थे है।
ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੁਡਾਪੇਸਟ ਹੰਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀ ਬਲੂਜ਼ਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੈਰੀ ਬਲੂਜ਼ਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਲੋਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਪਚਾਰ ਕੂਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਉਖਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਲੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੌਰਨਬਿਲ ਇੱਕ ਬਰਡ ਹੈ ਔਰ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰਨਬਿਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਸਮ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਗੇਮਸ ਦਾ 3rd ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡਲ ਟੈਲੀ ਨੂੰ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 256 ਮੈਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ 3rd ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਇਫੈਕਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪਸ ਫਲੀਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर consistent air travel during COVID-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਫਲਾਈਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਲੀਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IIT ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ IIT ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀ, ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਫਲੀਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ IIT ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ IIT ਰੋਪੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, IIT ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵਾਰਡ ਬੋਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਵਾਰਡ ਬੋਟ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਬੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IIT ਰੋਪੜ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਡ ਬੋਟ ਤੋਂ ਸਿਮਿਲਰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕੋਰੋਬੋਟ ਰੋਬੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਰੋਬੋਟ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਕੋਰੋਬੋਟ। ਕਿਸ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਥਾਣੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ। IIT ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਿਲਕਾ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਰਾਵੈਡੀ ਡੋਲਫਿਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ IIT ਮਦਰਾਸ ਨੇ। IIT ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਈਸੈਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ IIT ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਨਿਊਟਨ ਆਈਸੈਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। IIT ਬੰਬੇ ਨੇ ਆਈਸਿੰਕ ਨਾਮ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। COVID-19 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਾਰਟਬੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ IIT ਬੰਬੇ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ, QS ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ QS ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਟੌਪ 2000 ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਟੌਪ 2000 ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ 21। ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼। ਇੰਡੀਆ ਦੀ 21 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਟੌਪ 2000 ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੌਪ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਈਅਰ 24 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ 24 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 21। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੌਪ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ? 21। ਔਰ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ IIT ਬੰਬੇ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ? 172 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। IIT ਬੰਬੇ 172 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
सैकेंड प्लेस ते है IISc बेंगलुरु, IISc बेंगलोर 185 नंबर ते। थर्ड प्लेस IIT दिल्ली 193 नंबर ते। टॉप 200 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 यूनिवर्सिटीज़ ने IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु और IIT दिल्ली। ठीक है जी, इन्हों के नंबर भी याद रखने ने 172, 185 और 193। इस तो इलावा ग्लोबली अगर गल करिए इस लिस्ट के ग्लोबली टॉप किया है MIT यूनिवर्सिटी USA दी है। MIT यूनिवर्सिटी काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यह यूनिवर्सिटी कितने है USA दे विच। और अगर सैकेंड प्लेस पर गल करिए स्टारफोर्ड यूनिवर्सिटी यह भी USA दी है। थर्ड प्लेस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी USA दी है। यानी कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स दे विच टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ ने जिहड़ियां वो कित्थे दियां ने USA दियां। ठीक है जी। और ऑक्सफोर्ड की गल करिए, ऑक्सफोर्ड एक काफ़ी इंपोर्टेंट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बार अपन इहदा नाम डिस्कस करते हुंदे आ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जिहड़ी कि UK दे विच है, यह 5वें नंबर पर है इस रैंकिंग दे विच। ग्लोबली 5th नंबर पर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नैक्सट है पैरे नकुरुनजीज़ा रिसेंटली पास्ड अवे। काफ़ी ट्रिकी नेम है। पियरे नकुरुनजीज़ा पास्ड अवे रिसेंटली। ही वाज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये केड़ी कंट्री दे प्रेजिडेंट सीगे? ये केड़ी कंट्री दे प्रेजिडेंट सीगे? ये प्रेजिडेंट सीगे बुरुंदी दे प्रेजिडेंट सीगे पियरे नकुरुनजीज़ा। केड़ी कंट्री दे प्रेजिडेंट ने ये? बुरुंदी एक कंट्री है, इसके प्रेजिडेंट सीगे, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई है। ठीक है। इसकी कैपिटल है गीतेगा। बुरुंदी कैपिटल गीतेगा और करंसी इत्थे फ्रैंक चलती है। याद रखनी है बुरुंदी कैपिटल की है गीतेगा और करंसी इत्थे फ्रैंक चलती है। अच्छा, रोमानिया के अपने हुणे एंबेसडर डिस्कस किए हैं। इंडियन एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं रोमानिया के। इसका नाम कमेंट बॉक्स के दसना है। हुणे डिस्कस किया उन्हों का नाम क्विक रिवीजन दे विच। इस तो इलावा रोमानिया की गल करते हैं। रोमानिया कैपिटल है बुचारेस्ट। कल भी इन्हों की कैपिटल डिस्कस की थी अपने। रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट है और करंसी इत्थे ल्यू चलती है। टोगो कैपिटल है लोम है और करंसी ईको चलती है। उन्होंने 8 कंट्रीज़ के विचों एक है अफ्रीकन कंट्रीज़ जिन्हों की करंसी नू फ्रैंक तो ईको कर दिता गया सी। सीरिया कैपिटल डेमस्कस और करंसी इत्थे पाउंड चलती है। सैनेगल कैपिटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सैनेगल कैपिटल है डकार और करंसी इत्थे ईको चलती है। ठीक है जी। नैक्सट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि किन्ना कोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री की गल करते हैं। अमित शाह गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने। अमित शाह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन्होंने की करा कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी बनाई किस दे लई? टू लुक इनटू वैलफेयर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स दे वैलफेयर दे लई एक कमेटी बनाई गई। बेसिकली 9 मैंबर्स कमेटी बनाई गई। इस कमेटी नू चेयर कौन करेगा? इस कमेटी के चेयरपर्सन कौन बनाए गए ने? चेयरमैन कौन बनाए गए ने? जी कृष्णा रेड्डी कौन ने? जी कृष्णा रेड्डी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स। जी कृष्णा रेड्डी। अगर आप गल करिए मिनिस्टर्स किस तरीके के होंगे ने? सब तो पहले मिनिस्टर्स सिंपल होंगे ने जिन्होंने लवे एक मिनिस्ट्री का पर्टिकुलर चार्ज होंगे। दूसरे मिनिस्टर्स होंगे ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जिन्होंने लवे एक मिनिस्ट्री का इंडिपेंडेंट चार्ज है, पर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहे जाते हैं, पर वो मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट उन्होंने लवे ही होंगी है, वही उस मिनिस्ट्री के हैड होंगे ने। और तीजा मिनिस्टर होंगे ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि डिप्टी होंगे ने।
ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ। ਇਹ ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP ਨੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੈਡੀ। ਕਾफ़ी घट MOS ने ਜਿਹੜੇ कि इंपोर्टेंट बनते हैं, उन्होंने बारे ਆਪਾਂ हौली हौली डिस्कस करांगे। कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कस कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ इंपोर्टेंट बनते हैं उन्होंने नाम ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। इस तो इलावा अदीले सुमनरीवाला ਇਹ भी एक कमेटी के हैड बनाए गए सी। IOC इंडियन ओलंपिक कमेटी द्वारा एक कमेटी बनाई गई, इंडियन ओलंपिक काउंसिल कह सकते हैं, इन्हों द्वारा एक कमेटी बनाई गई किस दे लई? एनुअल ग्रांट्स के लिए एनुअल फीस के लिए जी कमेटी बनाई गई, उसके हैड अपॉइंट किए गए सी अदीले सुमनरीवाला। राजेश भूषण ड्रग रैगूलेटरी सिस्टम रिव्यू करने के लिए जी कमेटी बनाई गई, उसके हैड बनाए गए राजेश भूषण उस कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए। DB शेखरतर इस एक कमेटी के हैड अपॉइंट किए गए, जिन्होंने काफ़ी इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन दित्तियां। सब तो पहले रिकमेंडेशन बनती है CDS, पोस्ट क्रिएट की गई CDS DB शेखरतर कमेटी द्वारा ही। CDS पोस्ट जिसदे विच जनरल बिपिन रावत नूं CDS अपॉइंट किया गया सी। 9304 पोस्टां मिलटरी इंटैलीजेंस दियां 930 पोस्टां नूं मिलटरी इंजीनियरिंग इंटैलीजेंस दियां 930 पोस्टां नूं अबोलिश करन दी गल भी इस कमेटी ने रिकमेंड की सी। इस तो इलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड भी एक रेगूलेशन पास की सी इसे कमेटी ने, DB शेखरतर कमेटी ने। नेक्स्ट है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद टेक्नोलॉजी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इसने डेवलप किया अनन्या एक वाटर बेस्ड डिसइनफेक्टेंट स्प्रे with nanotechnology assistant formulation. Its headquarter is located in, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अनन्या नाम का एक डिसइनफेक्टेंट स्प्रे लॉन्च किया। स्प्रे जिसका 24 घंटे तक इसका असर रहेगा अगर आप इसमें यूज़ करते हैं। अनन्या वाटर बेस्ड डिसइनफेक्टेंट स्प्रे किस द्वारा डेवलप किया गया? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। इसका हैडकुआटर है पुणे दे विच। इसका हैडकुआटर कित्थे है? पुणे महाराष्ट्र दे विच। इसका हैडकुआटर है। ठीक है जी, पुणे महाराष्ट्र दे विच इसका हैडकुआटर। इस तो इलावा गल करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद दे विच वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर ओपन किया गया सी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैडिटेशन सेंटर कित्थे ओपन किया गया सी? हैदराबाद दे विच। मुंबई ने टैप वाटर रैंकिंग नूं टॉप किया सी। काला घोड़ा फैसटीवल ऑर्गेनाइज किया गया सी मुंबई दे विच। हैदराबाद दे विच विंग्स इंडिया इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया सी। नहीं, विंग्स इंडिया इवेंट बेंगलुरु दे विच ऑर्गेनाइज किया गया सी। विंग्स इंडिया इवेंट। इस तो इलावा हैदराबाद और मुंबई नूं यूनाइटेड नेशनस क्रिएटिव सिटीज़ नैटवर्क की लिस्ट की लिस्ट दे विच ऐड किया गया सी। हैदराबाद नूं इन द फील्ड ऑफ गैस्ट्रोनॉमी और मुंबई नूं इन द फील्ड ऑफ फिल्म। बेंगलुरु और चेन्नई के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आपां हुणे डिस्कस की है कि तुरंत कस्टम लॉन्च किया गया CBIC द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरैक्ट टैक्स एंड कस्टम। इस बोर्ड द्वारा बेंगलुरु और चेन्नई के विच लॉन्च किया गया सी। तुरंत कस्टम। नेक्स्ट है हु इज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एंबेसडर कौन अपॉइंट किए गए? गार्गो इंटरनेशनल बेसिकली एक कंपनी है, एक कह सकते हैं लुब्रिकेंट्स बेस्ड कंपनी भी कह सकते हैं इसनूं। इसके एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं सोनू सूद इस कंपनी के एंबेसडर अपॉइंट किए गए। अच्छा, सोनू सूद काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के भी चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैल्प की है माइग्रेंट वर्कर्स की कह सकते हैं।
इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस की गल करिए, सब तो पहले बाकी ऑप्शनस दे विच अक्षय कुमार रोड सेफ्टी दे एंबेसडर अपॉइंट किए गए हैं। सरदूल ठाकुर अपॉइंट किए गए सी एंबेसडर ऑफ टाटा पावर के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी सरदूल ठाकुर। शेफाली वर्मा ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी पैप्सीको के ब्रांड एंबेसडर कौन ने? शेफाली वर्मा। एम एस धोनी पोकर स्टार्स इंडिया के ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किए गए सी एम एस धोनी। नैक्सट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कोलैबोरेटेड विद रोटरी इंडिया दे नाल किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेशन की? रोटरी इंडिया के नाल किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट की टू प्रोवाइड ऑडियो वीडियो कंटेंट इन हिंदी फॉर क्लासिस 1 to 12, 1 तो लैके 12 यानी कि फर्स्ट क्लास तो 12th क्लास तक ऑडियो वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करवाने के लिए वो भी हिंदी दे विच रोटरी इंडिया के नाल पार्टनरशिप की किस द्वारा पार्टनरशिप की गई? NCERT द्वारा। किस द्वारा पार्टनरशिप की गई? NCERT द्वारा पार्टनरशिप की गई। अच्छा, NCERT की फुल फॉर्म कोई दस सकता है? NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग फुल फॉर्म है। हैडकुआटर न्यू दिल्ली दे विच है। और NCERT के हैड ने ऋषिकेश सेनापति, एच साइलेंट इत्थे इन्हां दा, ऋषिकेश सेनापति NCERT दे हैड ने। इस तो इलावा CBSE की गल करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सैकेंडरी एजुकेशन इसका हैडकुआटर भी न्यू दिल्ली दे विच है। इसनूं 1962 दे विच बनाया गया सी और इसके हैड रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं मनोज आहूजा रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं CBSE के हैड। HRD मिनिस्ट्री कौन देख रहे हैं? HRD मिनिस्ट्री देख रहे हैं HRD मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशांक देख रहे हैं। रमेश पोखरियाल निशांक लवे HRD मिनिस्ट्री है और यह हरिद्वार उत्तराखंड तो लोक सभा MP ने। अच्छा, उत्तराखंड तो याद आता है गारसेन इसकी कैपिटल अनाउंस की गई सी उत्तराखंड की समर कैपिटल गारसेन। उत्तराखंड के ही स्नो लियोपार्ड कंजरवेशन प्रोजैक्ट लगाया गया सी गंगोत्री नैशनल पार्क दे विच। उत्तराखंड दे विच ही रिसेंटली ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाना सी। ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज उत्तराखंड दे विच कित्थे? ऋषिकेश दे विच, जिहड़ा कि रिप्लेस करेगा लक्ष्मण झूला नूं। ठीक है जी, ये सारे फैक्ट्स याद रखने ने। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज़ बाउट 1.16% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स रिसेंटली विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 5683.50 करोड़। 1.16% स्टेक बाय किया जियो प्लेटफॉर्म्स के विच। किसने किया? आदिया कंपनी। आदिया की फुल फॉर्म है आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी। और इस इन्वेस्टमेंट के नाल अगर आप क्वेश्चन एक होर भी पूछा जा सकता है कि किन्नी कंपनीज़ ने हुण तक जियो प्लेटफॉर्म्स के स्टेक बाय किए? किन्नी कंपनीज़ ने स्टेक बाय किया? 8 कंपनीज़ ने। आदिया 8वीं कंपनी बनी है जिसने जियो प्लेटफॉर्म्स के स्टेक बाय किया है। ठीक है जी, ये याद रखना है। इस तो इलावा फेसबुक ने 9.99% स्टेक बाय किया है। विस्टा इक्विटी ने 2.32% स्टेक बाय किया सी। KKR ने भी 2.32% स्टेक बाय किया सी। मूबादाला ने 1.85%। पहले जो मैंने न्यूज़ पढ़ाई सी तो मधुबाला दस दिता सी गलती नाल। मूबादाला कंपनी है और यह भी आबू धाबी की कंपनी है।
मुबादला कंपनी भी आबू धाबी की कंपनी है। 1.85% स्टेक बाय किया इसने। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन नेटवर्क टू फैसिलिटेट प्लाज्मा एक्सचेंज बिटवीन रिकवर्ड पेशेंट्स ऑफ कोविड-19 अंडर इनिशिएटिव सोहो-जोधा। सोहो-जोधा इंटरस्टिंग न्यूज़ है। ये न्यूज़ आप पहले भी इस तरीके की न्यूज़ डिस्कस की थी प्लाज्मा एक्सचेंज के रिगार्डिंग। प्लाज्मा एक्सचेंज की होया सी कि अगर कोई पेशेंट्स कोविड-19 तो ट्रीट हो चुका है, अगर वह सही हो चुका है तो उसदे विच जिहड़ी एंटीबॉडीज़ ने, उसदे विच जिहड़ी एंटीबॉडीज़ ने प्लाज्मा है उसनूं की कहते बाहर निकाल के जिहड़ा पर्सन इन्फेक्टेड है उसदे विच इंजैक्ट किया जाए तो की होएगा, वह पर्सन भी उन्हां एंटीबॉडीज़ के सहारे ठीक हो जाएगा। ठीक है जी। इसनूं सब तो पहले इंडिया दे विच कित्थे टेस्ट किया गया सी, कित्थे इसनूं टेस्ट किया गया सी, सक्सैसफुली टेस्ट किया गया सी यूपी दे विच। तुहानूं याद होएगा यूपी की एक यूनीवर्सिटी आपां स्टडी की सी, यूनीवर्सिटी का नाम सीगा किंग जॉर्ज यूनीवर्सिटी। किंग जॉर्ज यूनीवर्सिटी सीगी यूपी की, उत्थे इसनूं टेस्ट किया गया सी इंडिया दे विच सक्सैसफुली। ठीक है जी। हुण सिमिलर इनिशिएटिव प्लाज्मा एक्सचेंज के रिगार्डिंग सोहो-जोधा के नाम तो किहड़ी कंट्री ने लिया है? बांग्लादेश ने। किहड़ी कंट्री ने यह इनिशिएटिव लिया? बांग्लादेश ने सोहो-जोधा के नाम तो यह इनिशिएटिव लिया। ठीक है जी, ये याद रखना। अच्छा, भूटान के नाल इंडिया ने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया। किस दे लई एग्रीमेंट साइन किया? एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट के लिए भूटान के नाल एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के नाल भी एक एग्रीमेंट साइन किया सी इंडिया ने वीट के रिगार्डिंग। अफगानिस्तान और एक कंट्री सी लेबानोन। अफगानिस्तान और लेबानोन, ये दो कंट्रीज़ नूं इंडिया की करेगी? वीट प्रोवाइड करेगी। वीट प्रोवाइड करेगी। अच्छा, लेबानोन ने एक ड्रग है जिसनों लीगलाइज किया सी मैडिकल परपज़ के लिए। मैडिकल परपज़ के लिए कैनीबल समथिंग, कैनीबल समथिंग इस तरीके का नाम सीगा। कमेंट बॉक्स में इसका करैक्ट नाम दसना। पाकिस्तान, पाकिस्तान के नाल तो चलो इंडिया से कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। अरीफ अलवी, अरीफ अलवी इत्थे दे प्रेसिडेंट ने, इमरान खान इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने। ये याद रखांगे आप। नेपाल, नेपाल की गल करते हैं। सब तो पहले नेपाल का विजिट टू नेपाल ईयर 2020 कैंपेन लॉन्च किया गया सी इत्थे दी प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी द्वारा। विद्या देवी भंडारी द्वारा। इत्थे दे प्राइम मिनिस्टर ने KP शर्मा ओली। KP शर्मा ओली। इस तो इलावा नेपाल की कर रहा है, इंडिया की कर रहा है, नेपाल दे विच स्कूल्स बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि अर्थक्वेक आया सी, आई थिंक 2016-17 के अराउंड अर्थक्वेक आया सी, जिस कारण नेपाल दे विच काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स नूं नुकसान पहुंचा सी। तो उसके लिए इंडिया काफ़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है नेपाल दे विच उन्हां स्कूल्स नूं रीबिल्ड करन दे लई, हाई स्कूल्स नूं रीबिल्ड करन दे लई। सिंपल आपां न्यूज़ पर्पज़ दे लई याद रखांगे। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।